program in a short while. Thank you. Good morning to all present here and good morning, dear parents. We will be starting with the program in a short while. Kindly be with us. Thank you. Okay, so Kavita ma'am is here. Good morning, Kavita ma'am, and welcome. Good morning, Kavita ma'am. Good morning. Good morning. Welcome to the event. Thank you. Good morning. A very happy International Yoga Day to you. Yeah, same to you, everybody. Anu ma'am, let us begin the program. Okay, thank you, Pooja ma'am. It is rightly said by B.S. Iyengar, yoga does not just change the way we see things, it transforms the person who sees it. A very warm good morning to everyone present here. Our distinguished guest, Ms. Sunita Chaudhary, who is an expert in yoga and is also associated with Art of Living. We're extremely delightful to have you with us. I would also like to welcome our esteemed guest, HMs, our Assistant Headmistress, Ms. Pooja Shandilya, dear parents, our little starlings, and my lovely colleagues for joining us today. Greetings to all on the auspicious occasion of 7th International Yoga Day. At Alcon, we give utmost importance to physical and mental well-being of our children. In the previous week, to highlight the significance and benefit of yoga, we have inculcated various engaging activities with our children. It was quizzes, yogasans into a daily curriculum. Today, we are celebrating week-long activities which have enlightened us from within and evolved us as a better human being. Yoga is like music, the rhythm of body, the melody of mind, and harmony of the soul create the symphony of life. So, let us begin the event by invocating the Almighty with a small prayer. So, here is it. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शांति शांति शांति। Wow, what a soulful beginning of the day.
Moving further, allow me to invite Devansh Acharya, our young Alconite, who would be performing yoga asanas under the guidance of his mother, who herself is a yoga trainer. He enjoys doing yoga. और हमारे नन्हे देवांश कहते हैं, भांति भांति के आसन और भिन्न भिन्न है नाम, शरीर के हर हिस्से को मिलता इससे बहुत आराम। बिल्कुल ठीक देवांश, तो आइए बुलाते हैं हमारे नन्हे योगा ट्रेनर को, देवांश आचार्य, टू शोकेस हिज टैलेंट। प्रणाम सबको। योग की शुरुआत करते हैं। ऐसा आसन, फिंगर लॉक, हीला, hands down, exhale, relax। पैर में थोड़ा गैप रखें, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएं। इनहेल, साइड में exhale and hold। सांस भरते ऊपर वापस, अदर साइड exhale, come back, hands down, exhale। पेटी चक्रासन, दोनों हाथ सामने की ओर, सांस भरते हुए, साइड में exhale, सांस छोड़ते हुए, वापस सांस भरते हुए आएंगे सामने की ओर, साइड में exhale। Inhale सामने, exhale relax। सूर्य नमस्कार। नमस्ते मुद्रा में हैंड्स रखें। 1 2 हस्त उत्थान का आसन, 3 हस्त पादासन, 4 हस्त संचालन आसन, 5 दंडासन, 6 अष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, 8 अधोमुख सवासना, 9 संचालक आसन, 10 हस्तपादासन, 11 उत्तान आसन, 12 नमस्कार। बैठ जाएं। सुखासन में बैठेंगे, कमर को सीधी रखते हुए, शोल्डर ब्लेड, सांस भरते ऊपर की ओर हाथ, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। पैर सीधे करेंगे। पश्चिमोत्तासन, सांस भरते हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हाथ नीचे। कम बैक, सांस भरते ऊपर, रिलैक्स। दोनों पैर लेंगे, भूमि नमन आसन, सांस भरते हैंड्स अप, सांस छोड़ते हुए नीचे, फॉरवर्ड टच, कम बैक, सांस भरते ऊपर। वज्रासन में बैठेंगे, दोनों पैरों को पीछे फोल्ड करें, कैमल वज्रासन लगाओ, दोनों हाथ पीछे टच करेंगे, नेक डाउन, कम बैक, कैट, सांस भरते हुए फेस अप, सांस छोड़ते हुए फेस डाउन, अप डाउन। चलिए सीधा लेट जाओ, सीधा लेटेंगे, करेंगे, inhale, exhale and hold, relax। चक्रा, दोनों हैंड्स को साइड में रखें, ऊपर, नॉर्मल ब्रीदिंग, रिलैक्स। उल्टा लेट जाएंगे, दोनों हाथों को शोल्डर के पास रखें, पैर सीधे, भुजंगासन, सांस भरते ऊपर, डाउन एक्सहेल। दोनों आसन लगाएंगे, लेग्स फोल्ड, एंकल पकड़ो, सांस भरते फेस अप, रिलैक्स। पैर दोनों सीधे, लेग्स फोल्ड, पीछे से लेग्स फोल्ड करें, दोनों हाथ सामने, पूरा एकदम हाथ सीधे, रिलैक्स। बैठ जाइए, प्राणायाम करेंगे। क्रॉस योर लेग्स, सुखासन में बैठेंगे, कमर को सीधी रखते हुए, अनुलोम विलोम। राइट नोस्ट्रिल से सांस भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, रिलैक्स। स्टिल करेंगे, सांस भरते हुए हैंड्स अप, सांस छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। डाउनली टाइम, कानों को अच्छे से बंद करेंगे, सांस भरते हुए, रिलैक्स। कमर सीधी, ज्ञान मुद्रा में हैंड्स, वन टाइम मूवमेंट।
and chanting. Love you, Mom. Wonderful. That was so beautiful and wonderful performance and skillful presentation of asanas by Devansh. Please maybe give him a good round of applause. Very nice. I must say that the family who involves and does yoga together form bonds and connection that will be with them throughout their life. With this, I would also like to welcome Ms. Sunita Rajiv ma'am for being here. Namaskar ma'am. Moving further, I would like to invite Anvika. Our tiny tots have always been full of talent and inspiration. और यही बात हमारी नन्ही अन्विका आपको प्रस्तुत करने वाली है. वो अपनी कविता के द्वारा योग के कुछ गुण ऐसे बताने वाली है जो जिन्हें आपको सुनकर मजा ही आ जाएगा. So let us join hands in welcoming Anvika Karoli with a beautiful smile and recitation of poem about yoga. So Anvika, are you ready, dear? Okay, so let's begin. So can we have a round of applause for Anvika and cheer her up? So yes, Anvika, you can begin your poem. नमस्कार, आज मैं योग का सुनाने जा रही हूँ। योग है जीवन का आधार। योग है जीवन का आधार। योग है संसार। योग हमें स्वस्थ बनाए, फिर क्यों ना इसको अपनाए। योग करने के नियम बनाए, बच्चे बूढ़े सबको बताएं। योग की शक्ति में रखेंगे विश्वास, लड़ेंगे हम तो कोरोना के साथ। योग से ना होगा जुकाम, सभी दूर करेंगी राम राम। धन्यवाद। राम राम अन्विका, आपने तो बिल्कुल सही बात बोली। कोरोना का साथ तो योग ने ही दिया है इस बार। बिल्कुल सही। Thank you, dear. It was indeed wonderful performance and beautifully sung. I wish to share very profoundly that during our exciting yoga week, teachers were overjoyed to see the children participating in each activity with endless enthusiasm and energy. The children eagerly look forward to every session and inspired their parents and family members to be part of this beautiful journey. So here we present you some glimpses of the activities, the awakening path in the form of a video, giving you a taste of a delightful time during yoga week. So here we are with the awakening path. Om is the most universal mantra. It's a way to invoke positivity in life. We used to start our day with chanting of this universal mantra, Om. Our children learnt and practiced variety of yoga poses to manage their anxiety, boosting up their self-esteem, knowing about their body and mindfulness.
along with various asanas and pranayama, our kids learned more about yoga through interesting and engaging activities like quiz, games, drawing, and many more. We are extremely thankful to all the parents for their full support and involvement in making this event a grand success. Thank you so much. Yoga is a great practice for both the body and the mind. It offers peace and mindfulness to its lovers and helps them get through daily stress. So yoga is the journey of the self, through the self and to the self. I'm sure you must have enjoyed this video, but nothing better than learning from the art of yoga from the expert herself. It gives me immense pleasure to introduce to you our yoga expert for the day, Ms. Sunita Chaudhary, who is a Quality Council certified advanced yoga trainer and a faculty with Art of Living Foundation. She has 10 to 12 years of experience in medical science and has been volunteering for various Art of Living programs like Art of Living 1, Art of Living 2, Sehat Samadhi Meditation, Apex program for corporate sectors, and many more, which she will soon share with us today. She profusely shares her knowledge and skills on how effectively one can manage mind and emotion, eliminate stress, live in harmony through simple yet profound yoga. So without much ado, allow me to invite Ms. Sunita Chaudhary ma'am to share her expertise with us. So welcome, ma'am. Unmute. Thank you so much, Anupama ma'am, for introducing me. Thank you. And thank you so much, Pooja ma'am, Principal sir, for giving me such opportunity to be with such beautiful children and teachers and lovely parents. अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं सेशन क्या लूं क्योंकि अगर मैंने वो जो अभी देखा है ना उसको देख के मुझे लग रहा है तो हो गया आपके बच्चों ने इतना सुंदर योगा किया है और उनको देख के मुझे ऐसा लग रहा था जब उनके साथ पेरेंट्स कर रहे थे तो फैमिली में ऑलरेडी योगा पहुंच चुका है। आपके ये जो वीक लॉन्ग सेशन हुए हैं आपने कहीं ना कहीं सीड डाल दिया है योगा का। बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है इस वीक लॉन्ग प्रोग्राम का। उनके आप देखिए फेस देखिए और ज्यादातर के साथ मैंने देखा मदर्स थी, ठीक है, और मदर्स ने अगर कर लिया तो समझ लिए पूरे घर ने कर लिया, वो करवा के ही मानेगी। आई एम ऑल्सो मदर, तो मुझे पता है कि वह हम कहीं ना कहीं पे फैमिली को इन्वॉल्व कर ही लेते हैं। कहते हैं ना एक मदर एजुकेटेड होती है तो पूरी फैमिली एजुकेटेड हो जाती है। तो देवांश और अन्विका ने तो पूरा सेशन ले लिया, मुझे तो लगता नहीं मैं कुछ कर पाऊंगी। They are like super yogis in this age. Our kids are really yogi. पता है आपको, है ना? वो तो ऑलरेडी योगी है ही। उन्हें हम योगा अभी क्या सिखाएंगे, वो हमें योगा सिखा रहे हैं। आपने देखा वो इतने फ्लेक्सिबल थे जी, इतने आसानी से देव्यांश ने सारे पोस्चर कर लिए, सूर्य नमस्कार कर लिए
और उसी की बदले अगर मैं किसी 25 ईयर ओल्ड को बोलती ना, तो वो तो उठने से पहले सोचते कि मैं उठूं कि नहीं उठूं, मैं करूं या नहीं करूं, वो सोचते हैं ना। बच्चों को हम बोलते चलो ये एक्टिविटी करते, दे आर ऑलवेज रेडी. So first, I really want to again thank you all for taking me on this platform. It's like, you know, becoming with one with the family, extended family. I have the yogi family already. Devansh and Anvika are there as super yogis. So let me share a little bit about my yogic journey. This is echoing from somewhere, I suppose. Somebody else has to mute the Ma'am, microphone. you all are muted. Is your phone, you're logged in through your phone as well? Not at all. I'm Okay. not. We'll just Now it's fine. Now it's fine. Yeah. Okay, as rightly ma'am said, I have medical science experience also. I have worked in government of Gujarat and government of Rajasthan for 10 years. I worked as a staff nurse, and then I did hospital management, and then I worked as an administrator for 10 years. And then, you know, seeing the health sector closely, एक नर्स जितना क्लोज होती है ना पेशेंट के, वो डॉक्टर भी उतने क्लोज नहीं होते हैं. तो इतना क्लोजली मैंने देखा है सिस्टम को चेंज होते हुए. व्हेन आई वाज वर्किंग, I did not do yoga that time, but I was also seeing things and getting restlessness in me and anxiety. First time I saw the dead body, I did not know that person, and I started crying. I was crying whole day. And then I thought, what is happening to me? Why this is bothering me? क्योंकि हॉस्पिटल में तो आप देखोगे ना, रोज ही कुछ ऐसा होता है. रोज every day you see now corona has hit us hard. रोज किसी ना किसी की फैमिली में, even you call single person, single in your phone list, किसी ना किसी की फैमिली में कोरोना हुआ है. एंड somebody has a bad news. अभी पिछले 2 वीक में, I mean अप्रैल के फर्स्ट 2 वीक्स में अगर हम कॉल करते किसी को ना, it was really scary. पता नहीं सामने से कौन सी न्यूज आने वाली है. So like that, I was getting anxiety in me and restlessness. And then somebody introduced me to Art of Living. When I did Art of Living, I was quite calm. And I kept practicing yoga through so many programs. I used to go Art of Living ashram. Every 6 months, I used to reach for advanced courses. I did so many advanced courses. And then I thought कि क्या hit किया मुझे? Suddenly, I suppose 7-8 years back, government launched a program that is called Non-Communicable Disease Program. And that was the last hit. And I thought, why we need government to take care of us? Government was already taking care for communicable disease, जो एक दूसरे से होती थी. जैसे कोरोना हो जाता है ना, अब कोरोना के लिए गवर्नमेंट कितना कुछ कर रही है, पर करना किसको है? हमें करना है. हमें मास्क लगाना है, हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है, हमें घर में रहना है. ओनली 3 चीजें तो हमें फॉलो करनी है. हाथ को साफ करना है अच्छे से, वो भी टेक्निक से. तो मैंने सोचा कि ये गवर्नमेंट ही सब कुछ करती जा रही है. डॉक्टर्स क्या, maybe few family members have doctors in their family, but what is happening in this profession कि आप दवाई तो ले जा रहे हो, but you are not treating the basic cause of the disease. And in these years, in my lifetime, actually, I have been working in hospital, but I never got bad for myself. I'm sure I got just when I was just going to have my daughter. So I thought, let me do something about it. Let me contribute. Hospital में तो आप सेवा कर ही रहे होते हो. आप एज ए मेडिकल प्रोफेशन या एडमिनिस्ट्रेटर, आपका काम ही सेवा वहां बन जाता है. सैलरी अपनी जगह, लेकिन आपको बहुत सारे आउट ऑफ द वे जाके काम करने पड़ते हैं हॉस्पिटल में. एंड आई वाज डूइंग दैट, बट दिस वर्क मुझे ये समझ में आया कि हमें अंदर से लोगों को चेंज करना है ना, बाहर से तो आप कितना चेंज कर लोगे. तो फिर आई डिड माई टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम व्हेन आई वाज वर्किंग इन नोएडा ESIC, एंड दिस हॉस्पिटल वाज रियली सपोर्टिव. उन्होंने बोला कि जाइए, आप छुट्टी लीजिए. एंड फाइनली आई लर्न योगा, और हॉस्पिटल में भी एडमिनिस्ट्रेशन तो करती थी, साथ में उनके लिए योगा क्लास भी लेती थी. एंड माय डायरेक्टर वाज आल्सो यूज्ड टू सिट इन फ्रंट ऑफ मी कि चलो हमें भी सिखा दो कुछ. सो दैट वाज हाउ माय जर्नी बिगिन. सो नाउ, अब क्या मैं देवांश से पूछना पड़ेगा, क्या बताऊं, मैं कुछ बचा नहीं है. सो योगा इज somebody is controlling my PPT. Let me share it. Share. Yes, this is my presentation for Yoga Day. Okay. Processing.
Should I share it and somebody is going to share it? I share it? Sunita ma'am, just open your PPT in your, have you opened the PPT downstairs in your, I can see it in your toolbar at the bottom. Yeah. So just open your PPT from here and then you can share your screen. You can just show it. Your screen is already shared. We can see your screen. Just need to open your PPT. It's not. I'll share now. Okay. Yeah. There was something going on here. Share desktop. Okay. Yeah, now we can see your PPT. Absolutely. Yeah. So if we see this yoga day symbol, our symbol also presents union. This is union of ourselves with the universe. And my motto to teach yoga is this. I get so many feedback, and that is what motivates me to teach yoga. The super kid from your own school, teacher, and these messages from a pregnant yogi. She's saying कि मुझे बहुत अच्छा लगा. My journey was really at ease, and these yogis, few yogis were with me, and they did 108 Surya Namaskar in 1 month of practice, and they have never experienced yoga before that. So this is why I teach yoga. So हम बच्चों को क्यों योगा सिखाना चाहते हैं हमारे फ्यूचर में? ये बच्चे तो ऑलरेडी योगी हैं, लेकिन इन फ्यूचर व्हाई वी वांट टू टीच योगा टू आवर किड्स? बिकॉज दे शुड नॉट हैव दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन दैट. लाइक फिजिकल में क्या आ जाता है? ओबेसिटी. यू कैन ऑब्जर्व दिस अराउंड. फिजिकल में ओबेसिटी है, बच्चों को बैक पेन होना लगा है, या इम्यूनिटी लेवल भी लो हो जाता है, एंड पुअर ग्रोथ. मेंटल लेवल पे अटेंशन डेफिशिएट, पुअर मेमोरी, creativeness कम होने लगती है, emotional anxiety, maybe tantrum also. Nowadays we are facing that tantrums issue. Social, they have some mistrust issue. Spiritually also they have some issues. So why yoga helps us is for physical benefit and mental benefit. If physically we practice yoga continuously, flexibility increases, coordination, balance. Our core becomes more strong, or our core is the base of our body. If you see हमारे postures, हमारे अपने posture, अगर हम अभी अपने आप को observe करें ना, तो हम खुद भी right posture में नहीं बैठे हैं. Let us see our own posture. क्या हम सीधे बैठे हैं? हमारी कमर, हमारी back, हमारा neck सीधा है. Let us do that. Let us sit in the correct posture now. And mentally, what happens? Let us see one thing. Okay, everybody, you just close your eyes. With this presentation only, while listening to me, close your eyes and observe your body. Observe your breath. Observe your mind. सभी लोग इस प्रोसेस को करेंगे. देखिए, योगा करने की चीज है, सुनने की नहीं है. सो आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करिए. फिर से अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करिए. और अब अपने माइंड को ऑब्जर्व करिए. धीरे से हम अपनी आंखें खोलेंगे. अब हमारे माइंड को हमने देखा कि बहुत सारे विचार आ रहे हैं. तो क्या होता है कि मेंटल बेनिफिट हमें होने लगता है योगा करने से कि बॉडी और माइंड का कनेक्शन बनने लगता है. मोस्ट ऑफ द टाइम we are not where we are. Most of the time we are thinking of past or maybe future कि future में क्या होगा, ये कोरोना जाएगा या नहीं जाएगा, या past 2 साल से हम घर में ही बंद हैं. तो हम हमेशा, हमारा जो माइंड है ना, वेवर करता है, कभी past में जाता है, कभी future में, और present में बहुत कम रहता है. आप अगर बच्चों को देखेंगे, आपके बच्चों को आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं. अगर आप पूरे दिन देखिए कितनी एनर्जी रहती है उनके अंदर, और हम शाम तक थक जाते हैं. क्यों? क्योंकि हम या तो पास्ट के बारे में सोच रहे थे, हमारा दिमाग थक जाता है, या तो फ्यूचर, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा. एंड दिस प्रोसेस विल टेक यू इन द प्रेजेंट मोमेंट. दिस इज हाउ वी सॉल्व आवर मेंटल इश्यूज. फॉर ओबेसिटी वी कैन प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार. फॉर पोस्चर करेक्शन लाइक देवांश डिड, ताड़ासना आप सभी बच्चों को कराइए. ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है. इवन तो हम लोगों का जो पोस्चर करेक्शन करना है, हम भी ताड़ासना प्रैक्टिस से कर सकते हैं. त्राटक क्रिया,
देखिए ये जो त्राटक क्रिया है ये सबकी आईज के लिए अच्छा है। हम लोग भी पूरे दिन 8 से 10 घंटे स्क्रीन देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं। अगर बच्चों को फोन करना है अपने रिलेटिव्स को या किसी से बात करनी है फोन देखेंगे, फिर हम उनका अपना स्क्रीन टाइम है, मी टाइम है। आजकल मेरी डॉटर भी बोलती है मेरा मी टाइम है, जो टाइम। तो ये बच्चे भी बहुत सारे स्क्रीन टाइम ले रहे हैं। तो आप देखिए स्पेक्स लेवल कितना बढ़ गया है बच्चों का। बहुत ज्यादा बच्चे आपको मिलेंगे आजकल स्पेक्स पहने हुए। सो वी कैन प्रैक्टिस योगिक क्रिया, दैट इज कॉल्ड त्राटका। देन बैलेंस। लाइफ में रूटेड और स्टेबल होना बहुत ही जरूरी है। योगा में बहुत सारे बैलेंसिंग पोज हैं, लाइक दिस ट्री पोज। ट्री पोज में जब हम जाते हैं तो हम अपने आप को बैलेंस करते हैं और हम एक दिशा में एक जगह पे फोकस करते हैं। लाइक दिस वे इफ यू फोकस समवेयर इन लाइफ यू आर बैलेंस्ड। और अगर आपका फोकस आज यहाँ, कल वहाँ, कल वहाँ, कल वहाँ है तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। इसीलिए योगा में हम बैलेंस पोज प्रैक्टिस करते हैं। फॉर स्ट्रेंथनिंग सी डाउनवर्ड डॉग, बहुत अच्छा कोर स्ट्रेंथनिंग इस पोज से होता है। एंड रेस्ट, आप योगा कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, लेकिन अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे, प्रॉपर रेस्ट, इट मीन्स नॉट 8 घंटे की स्लीप अगर हमारी रात को होती है, रात को हम सो जाते हैं, 8 बजे उठते हैं, स्टिल वी आर टायर्ड, वी आर नॉट रेस्टेड वेल। वी हैव टू सी दिस थिंग। और अभी कोरोना काल में जो हमारे लंग्स के साथ हुआ है उसके लिए तो सबसे जरूरी है प्राणायाम। आई एम सो सरप्राइज टू सी, इवन हैप्पी टू सी, नॉट सरप्राइज, हैप्पी टू सी कि डॉक्टर्स हमारे अभी सब लोगों को बोलते हैं कि आप प्राणायाम करिए। तो प्राणायाम आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। और वो क्यों अच्छा है? क्योंकि आपका ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। सो एवरीबडी शुड प्रैक्टिस प्राणायाम टू इम्प्रूव इम्यूनिटी। सो एनर्जी के बारे में जैसे आपसे मैंने बात की, बच्चों में बहुत एनर्जी। और हमारे माइंड को आप देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हेन विल यू बी हैप्पी, तो हमारे दिमाग में क्या आंसर आता है? ओह, मेरा ये जो सेशन खत्म हो जाएगा, आज छुट्टी हो जाएगी, देन आई विल बी हैप्पी। एंड समबडी विल थिंक, जैसे हमारे बच्चे हैं जब 10th क्लास में होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो हम सोचते हैं 10th का रिजल्ट आ जाएगा, 90% मार्क्स आ जाएंगे, 99 आ जाएंगे, आई विल बी हैप्पी। ठीक है, फिर वो कॉलेज चला जाएगा, देन आई विल बी हैप्पी। उसके बाद अरे उसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, देन ओनली आई विल बी हैप्पी ना। हाउ कैन आई बी हैप्पी टुडे? ठीक है भाई, जॉब भी मिल गई, जॉब मिलने के बाद भी व्हेन आई एम हैप्पी। ठीक है, जॉब मिल गया, अब तो भाई बच्चे की शादी भी करनी जरूरी है, शादी कर दी, और 2 साल बाद पूछेंगे भाई हाँ कब है, क्यों, गुड न्यूज, क्योंकि हम तो टेंशन में ही है ना, शादी हो गई, बच्चा क्यों नहीं हो रहा। फिर बच्चा होगा, ओके, बच्चा भी अब स्कूल जाएगा, फिर वही प्रोसेस चलता रहेगा। सो व्हेन वी विल बी हैप्पी, व्हेन एंड देन। आप चेक करिए, ये हमारी लाइफ में बहुत एवरीडे हम करते हैं, व्हेन एंड देन, व्हेन एंड देन। जब मेरा ये प्रमोशन हो जाएगा, आई विल बी हैप्पी। कोरोना चला जाएगा, आई विल बी हैप्पी। अगर हम बाहर जाके मूवी देख सकेंगे, आई विल बी हैप्पी। दिस इज हाउ वी पोस्टपोन आवर हैप्पीनेस। लेकिन आप बच्चों को देखिए, वो हमेशा ही खुश रहते हैं, उनको जरूरत नहीं है कि ये मिलेगा तो ही हैप्पी हो सकता है। फॉर फ्यू मोमेंट्स दे आर लाइक, नहीं, टेंट्रम करते हैं, खैर वो तो, और वो बहुत खुश रहते हैं। तो हमारा प्रेजेंट मोमेंट में आना कैसे पॉसिबल है? वो है योगा से। तो हम देखते हैं एक्चुअल योगी कौन है। ये है हमारे एक्चुअल योगी जिनसे हम सीख रहे हैं, हमारे बच्चे। ये पोजेस देखिए, बच्चे तो जब से पैदा हुए तब से पोज करते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। See these poses, tree pose, camel pose, chair pose, big toe pose, cow pose, ये बच्चे करते रहते हैं। वॉरियर पोज तो बहुत ज्यादा करते हैं बच्चे। फिर देखेंगे तो प्रकृति में भी योगा है। क्यों बटरफ्लाई नाम है, डोगा पोज नाम है, कोबरा पोज नाम है, एंड कैमल पोज नाम है, ये हमारी प्रकृति में है। तो हम देखेंगे कि हमारे आसपास तो योगा ऑलरेडी ही है। जस्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऑब्जर्व एंड अभ्यास, हमें खुद को अभ्यास करना है। सो देयर आर मिसकॉन्सेप्शंस आल्सो अबाउट योगा। अगर मैं किसी को बोलूँ, अगर इवन दो आई एम ए योगी एंड इफ आई टेल एनीबॉडी टू डू योगा, कहेंगे भाई योगा हमारे बस की बात नहीं है, ये वो लोग करेंगे जो थोड़े पतले हैं, जो फ्लेक्सिबल है। भाई पतले ही कोई करना है तो फिर आपको तो कुछ नहीं करना है इसका मतलब। और फिर कहेंगे ये तो जेंटल स्ट्रेचिंग ही, तो इसमें होता क्या, जिम जाना चाहिए हमें तो। ठीक है भाई, फिर योगा कहते हैं कि ये हम नहीं कर सकते, ये हमारे रिलीजन से मैच नहीं करता। बट लेट मी टेल यू, योगा इज इन नेचर। अभी मैंने जैसे बताया, आपके बच्चे तो योगी है ना, वो चाहे किसी भी रिलीजन में आएंगे वो योगी ही आते हैं। एंड फिर एक सबसे बड़ा डर है कि हम अगर योगा करेंगे तो भाई हमारे फूड पे रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, हमें तो कहेंगे वेजिटेरियन खाओ,
आप भैया सन्यासी बन जाएंगे योगी करके, घर वाले बोलेंगे इतना योगा करोगे तो तुम सन्यासी बन जाओगे, हो सकता है कल तुम ही घर छोड़ के चले जाओ, इतना योगा कर लिया। पर ऐसा नहीं है, हम अपने घर में भी रह के योगी बन सकते हैं। बट फ्यू रिस्ट्रिक्शंस हमें जरूर लेनी चाहिए योगा शुरू करने से पहले। फर्स्ट, आप यूट्यूब, सोशल मीडिया, टीवी देख के जो योगा करते हैं ना, दैट इज नॉट योगा। हमें हमारे उपनिषद, हमारे ग्रंथों में भी कहा है, फाइंड ए क्वालिफाइड गुरु जो आपको प्रॉपर गाइडलाइन दे सके योगा के लिए। योगा इज जस्ट नॉट पोस्चर, इवन तो पोस्चर भी आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे टीवी देख के, क्योंकि वो पूरा नहीं बता पाते हैं आपको। अगर कोई योगा टीचर पर्सनली सिखा रहा है, आपको ग्रुप में भी सिखा रहा है, लेकिन आपको फोकस तो दे रहा है ना, वो आपको करेक्ट करेगा। और गलत पोस्चर करने से आपके और इश्यू हो जाएंगे, और फिर आप कहेंगे कि ये तो योगा करने से हो गया। वो ऐसा नहीं होता है। जैसे कपालभाति आप देखिए, सारी दुनिया कपालभाति कर रही है, लेकिन आप देखिए जिनको हार्ट इश्यूज है, जिनको हाई बीपी इशू है, उनको बहुत स्लो करना चाहिए। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, बस देख रहे हैं कपालभाति हो गया। नहीं जी भाई, वो कपालभाति नहीं है, आप अपने आप को हर्ट कर रहे हैं। उसी तरह लोगों को लगता है भाई एज, हमारी तो एज हो गई है, हम नहीं कर पाएंगे, या तो मेरी तो ये एज भाई मस्ती करने की, योगा नहीं कर पाएंगे। सो इट्स नॉट लाइक दैट। योगा डिपेंड करता है आपके फिजिकल कैपेबिलिटी पे। कुछ लोग ज्यादा कर पाएंगे, कुछ कम, पर सभी कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो प्लीज टॉक टू योर मेडिकल डॉक्टर बिफोर यू स्टार्ट योर योगा। कैन somebody say yes or no? I think I'm just speaking. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We are there with Thank you. Thank you so much. It's like, I'm just talking. Yes or no? ठीक है. Okay. So for our kids, we should do yoga. She is my daughter and she started yoga really early. बच्चों के तो लिए यही है कि वो अपनी आंखों को फॉलो करते हैं। आप तो ऑब्जर्व करते ही हैं रोजमर्रा हमारी लाइफ में, हम जो करेंगे उन्हें भी वही करना है। तो इसीलिए हमें ये खुद करना पड़ेगा। तो आज हम करेंगे सब, हाँ या ना बोल दीजिए तो मुझे पता चले आप लोग यही हैं। यस मैम। ठीक है। ओके। सो अभी आपको कुछ नहीं करना, जस्ट सिट ऑन योर सीट। मैं सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी और आप मुझे फॉलो करिए। आप आंखें बंद भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखना तो है नहीं आपको। तो आंखें आप बंद कर लीजिए। लेट अस प्रे। उन इतने वर्षों से, हजारों वर्षों से इतने गुरुज ने हमें ये योगिक पद्धति दी है, जो भारत में पहले होती ही थी और बीच में लुप्त हो गई। आपको पता ही है उसके कारण क्या है। लेट्स नॉट गो डीपर इनटू इट नाउ। थैंक्स टू आवर प्रधानमंत्री जी, उन्होंने यूएन में ये रखा और आज हम अपना 7वां इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं। इन वर्ल्ड, भारत का नाम है इस चीज के। लेट अस प्रे टू आवर गुरुज। आंखें बंद करेंगे, हाथ प्रार्थना मुद्रा में अपनी चेस्ट के सामने रखते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात् परम ब्रह्मा गुरुर साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आंखें बंद रखते हुए अपने हाथों को अपने नीज पे रखेंगे, ओपन टुवर्ड्स द स्काई। सबसे पहले आप चेक करिए कि आपकी बैक सीधी है और आपकी गर्दन सीधी है। आंखें बंद रखते हुए अपने आप को चेक करते हैं। एक साधारण श्वास अंदर, मुस्कुराते मुस्कुराते बाहर। एक बड़ी सी स्माइल अपने फेस पे रखेंगे। देखिए श्री श्री कहते हैं, फेक इट टिल यू मेक इट। इस चेहरे पे एक स्माइल रखिए जब तक आप इसको अच्छे से पेस्ट नहीं कर देते। अनदर ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट। लेट अस ब्रीथ इन फॉर ओम। ब्रीथ इन, हम 3 बार ओम करेंगे। ओ
Breathe in again. Breathe in again. आंखें बंद रखते हुए ही अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे, अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करेंगे, अपने माइंड को ऑब्जर्व करेंगे। धीरे से आप अपनी आंखें चाहे तो खोल सकते हैं या तो बंद कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो आपको अभी दिखाई नहीं दे रही, आप जस्ट मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं, या मैं इस पीपीटी को बंद कर देती हूँ, आप मुझे देख सकते हैं। आप मुझे देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट विद आवर हेड। अपने हाथ पे यहाँ जो बीच में है ना, एकदम जहाँ पंडित जी की चोटी बनती है, वहां अपना हाथ रखिए, राइट हैंड, और थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए आंख बंद करके कि ये थोड़ा हीटेड अप है, ये थोड़ा सा गर्म है। ये हथेली रखिए आप, ये आपको गर्म लग रहा है? हाँ, ये गर्म इसलिए क्योंकि ये मशीन चलती रहती है, इसको आराम हम नहीं देते हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसको ऐसे मसाज करना है हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से, कोई प्रेशर नहीं है। मुस्कुराइए, आप इतना अच्छा आज कर रहे हैं ना अपने शरीर के लिए, ये आपको थैंक यू बोलने वाला है कि आज भैया मेरा भी कुछ ध्यान रख लिया तुमने। इसको मसाज करते हैं हम हल्के हाथ से, है ना? ऐसी मुस्कुराहट के साथ योगा बहुत फल देता है। थैंक यू सो मच अनविका, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप रियल योगी हैं। मुझे तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप कहाँ मिलते हैं? इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे? अच्छा, चलिए फिर क्या करेंगे, इन दोनों हथेलियों को आप यहाँ रखिए। ये यहाँ टेंशन आपने जो जमा की है ना, यहाँ पे रखिए। इसको आप यहाँ हल्का हल्का मसाज, हल्का, बिल्कुल हल्का, में प्रेशर कुछ नहीं डालना है, हल्का मसाज दीजिए। फील करिए कितना स्ट्रेस यहाँ हमने रखा है, उसको हमें हटाना है। आज हमें इस सेशन से स्ट्रेस फ्री होके जाना है। देखिए जीवन तो ऐसे ही चलता रहेगा, आप भी है ना उन लोगों की तरह हैप्पीनेस को पोस्टपोन ना करें। जहां भी मौका मिले खुश हो जाइए। यूं नहीं कि भाई आज पिज्जा पार्टी होगी तभी खुश होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। रिलैक्स, है ना? वेरी गुड। अब आईब्रो पे आप अपनी ये 2 उंगलियां ले जाइए एंड थोड़ा दबाते हुए, प्रेशर करते हुए, लेट अस प्रेस इट एंड देन मसाज करते हुए। देखिए आप कितना तनाव है, कितना सारा स्क्रीन हम जब देखते हैं। और ये बच्चों को जरूर कराना है, आपको सब बच्चों को आप ये रोज करा सकते हैं। जस्ट 10 मिनट्स का एक सेशन आप लोग ले सकते हैं, बहुत इजी है। देखिए ये, इसको मसाज करते जाइए, देखेंगे आपको फील हो रहा है ये मसल्स कितनी स्टिफ है हमारी। ये उंगलियों से करिए आप, 2 उंगली। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, इसके पास आना है। ये जो है ना, ये है समस्या की जड़। ये क्या अपने बिजनेस में तो रहती नहीं है, दूसरे के बिजनेस में चली जाती है। तो लेट अस पेस्ट इट, इसको पेस्ट करेंगे। आप इसको जितना अपने पास चिपका के रखेंगे ना अपनी नोज को, उतना अच्छा है आपके लिए भी और दूसरे के लिए भी। लेट अस पेस्ट आवर नोज, पेस्ट करेंगे, मसाज बहुत ही जरूरी है। आपके फेस में सबसे ज्यादा मसल्स होती है जो हमें पता भी नहीं है। जब हम टेंशन करते हैं ना, 72 मसल्स आप यूज करते हैं, और उससे आधी करते हैं जब आप स्माइल करते हैं। ठीक है, अब कान को थोड़ा खींचिए। पहले जो आप टीचर लोग बहुत अच्छा करते थे, अब नहीं करते, ये जरूरी है। ये क्यों खींचते हैं? क्योंकि इससे हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, इसीलिए पहले के टीचर खींचते थे। अब तो बंद कर दिया सबने। ये देखिए, बाहर खींचिए, बाहर खींचिए। पेरेंट्स को भी बोल रही हूँ, आप लोग खींचा करिए अपने बच्चों के कान, बहुत जरूरी है खींचना, बिगड़ जाते हैं नहीं तो। नीचे से खींचिए। नर्वस सिस्टम सीधा इससे जुड़ा हुआ है। देन रोटेट योर ईयर, पकड़ के। इसीलिए पता है पहले गुरुजी दंड बैठक कराते थे, कान पकड़ के बैठो उठो। तो क्या फिजिकल एक्सरसाइज, माइंड है ना एकदम प्रेजेंट में आ जाता था। उल्टा भी करिए, उल्टा। वेरी गुड।
अब आप अपना मुंह ओपन करिए और यहाँ पे जो हमने गांठें बांधी है जिसकी वजह से हम स्माइल नहीं कर पाते हैं, लेट अस मसाज। वेरी गुड। अब हम पूरे ईयर टू ईयर कर सकते हैं स्माइल। शो मी योर टीथ एवरीबॉडी। अब हमारा जॉ का देखिए, जिन लोगों को थायराइड, आपको बताती हूँ फीमेल 10 में से 7 फीमेल को मैंने देखा थायराइड इशू आ गया है। क्यों आ गया है? हार्मोनल बहुत इम्बैलेंस चल रहा है हमारी बॉडी में, फूड भी बहुत इफेक्ट करता है, वो एक अलग विषय हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन लेट अस डू समथिंग फॉर आवर थायराइड। ओके, खाना कैसे चबाते हैं? गाय कैसे? आप अपने हाथ को भी यूज कर सकते हैं। अब इसी को आपको ऊपर देख के करना है। डंबल एक्सरसाइज फॉर योर जॉ। and slowly come down. Can you feel something happen here? ये आपकी थायराइड और जो डबल चिन है ना, उसके लिए बेस्ट है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं पे भी कर सकते हैं ना। मसाज करिए अपनी, आप थायराइड को थोड़ा प्यार दीजिए। गिव सम लव टू योर थायराइड। वेरी गुड, रिलैक्स। इतना हमने किया। अब लेट अस सी व्हाट हैपेंस टू आवर नेक व्हेन वी टीच। मेरे घर में जितनी भी टीचर है ना, उनमें से 99% को सर्वाइकल इशू है। तो मुझे बहुत टीचर्स की चिंता है। आप लोगों को जिनको सर्वाइकल इशू है, वो चिन कभी भी चेस्ट को नहीं लगाएं, बीच में ही रहें। बाकी लोग ऊपर देखेंगे, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते वक्त नीचे। ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट, down. Breathe in up, breathe out, down. Chin to the chest. Come in the center. अब राइट ईयर को ब्रीद इन करते वक्त लगाइए राइट शोल्डर के। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कम इन द सेंटर। अब लेट अस गो बैक, पीछे की तरफ देखते हैं। राइट शोल्डर को देखिए, कोई है आपके पीछे? इज देयर समबडी बिहाइंड यू? कम इन द सेंटर। वंस अगेन गो लेफ्ट साइड। इज देयर समबडी बिहाइंड यू? फील द स्ट्रेच हैपनिंग इन योर नेक। कम इन द सेंटर। 2 बार और करेंगे इसको, ब्रीद इन और ब्रीद आउट के साथ। पीछे की तरफ देखिए, राइट साइड। कम बैक। Left side, come back. One more time. Right side, come back. Left side, come back. Come in the center. सबसे important eyes. आप सभी लोग स्क्रीन पे बहुत रहते हैं ना, इसके लिए आप ये देख लीजिए, ये जरूरी करना है, बच्चे एंड टीचर्स एंड पेरेंट्स। Look up and down. Only eyes up. Look at me. Only eyes up and down, up and down, up and down. 10 times up and down. Only eyes, eyes, not neck, not neck. Only eyes up and down, eyes up and down, eyes up and down. Ab look right, only eyes, and left, right 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 and left. Clockwise rotate your eyes, clockwise. Anvika, clockwise. Look at me, Anvika. आंखों को घुमाना है ऐसे, clockwise. घूम घूम के देखो ऐसे, आंखों को घुमा के देखना है। तुम तो वैसे भी देखती ही होगी पक्का। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ना वाइड ओपन। कैसे देखते मम्मा को घूर घूर के? वाइड ओपन, wide open, 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 wide open and close, tight, 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 tight. जैसे आपको चांद तारे नजर आ जाए इतना टाइट। Close, 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 close. Massage your hands. Put on your eyes.
दिस इज वेरी गुड फॉर योर आई साइट, आपके बच्चों के आई साइट के लिए बहुत ही अच्छा है. लेट अस डू वन फॉर आवर शोल्डर. ये अपनी उंगलियों को रखिए यहाँ पे और मेक ए सर्कल. ओपन योर चेस्ट. जब ऊपर जाता है आगे आता है तो आपकी कोहनियां मिलती हैं, एल्बो मिलती है, एंड देन ओपन. आप देखेंगे कितनी स्टिफनेस यहाँ जमा हो जाती है ना. ओपन. सांस लेते वक्त आधा और सांस छोड़ते वक्त वापस से आधा. 10 टाइम्स. ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट. ऑपोजिट करेंगे. ऑपोजिट. आर यू फीलिंग योर शोल्डर्स? कोकली मैम है ना, विनीता जी, आर यू फीलिंग योर शोल्डर्स? वेरी गुड. देखिए बहुत सिंपल है. प्लीज आप अपनी लाइफस्टाइल, योगा इज ए लाइफस्टाइल. जैसे आप ब्रश करते हैं ना रोज, हमें योगा को करना है. वेरी गुड. आई कुड सी अनुपमा मैम also doing behind the scene. अब मैं आपको ये बताती हूँ, योगा ना करने की चीज है, सिर्फ सुनने की तो नहीं है. अब आप क्या करेंगे, हाथों को स्ट्रेच करिए बाहर. जैसे ये आपका हॉल है, घर का हॉल है, उसको आपको बड़ा करना है. यू नीड ए बिगर हॉल, सो योर पाम्स आर टुवर्ड्स यू, फेसिंग द वॉल. बिगर कर लीजिए. पुश 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 पुश. वेरी गुड. एंड while pushing it, make a small circle. 1, 2, 3. Let us have a smile and feel our shoulders. 4, 5, 6, 7. देखते हैं कौन पहले हाथ नीचे रखता है. 8. अनविका जी करिए. वेरी गुड. ऑपोजिट. योगा में है कर्मा थ्योरी है. आपको जो करना है उसको उल्टा भी आपको करना पड़ता है, और ये कर्मा जीवन में भी है. सीधा कर लीजिए हाथों को एकदम स्ट्रेट. देखिए जितना स्ट्रेट होगा उतना फायदा होगा आपको. जिनको फ्रोजन शोल्डर है, शोल्डर में कुछ भी इशू है, उनके लिए बहुत अच्छा है. फील करिए. अभी देखिए काफी लोगों ने नीचे हाथ रख लिया है. विल कंटिन्यू. जब तक सभी लोग नहीं करेंगे विल कंटिन्यू, है ना. आज ही करना है. वेरी गुड. एंड रिलैक्स. अब क्या करेंगे, इसको रिलैक्स करना है ना, तो आपने शोल्डर को टेक टुवर्ड्स योर ईयर्स. अनविका, इट इज इजी फॉर यू. जब मम्मी को मना करना है ऐसे ही करते हैं ना. नो नो नो. योर शोल्डर टू योर ईयर्स. कितना इजी है भाई. आप लोग क्लास लेते लेते भी कभी कभी कैमरा ऑफ करके ये कर लिया करो. डोंट वेट फॉर द स्पेसिफिक टाइम कि भाई टाइम मिलेगा तब करूंगी, ये होगा तब खुश होंगी. ऐसा नहीं करना है ना हमें. वी हैव टू बी हैप्पी ऑल द टाइम. इट्स ए डिसीजन यू कैन मेक टुडे. आई विल बी हैप्पी all the time. Yes, we can do it. Vinita ma'am is agreeing with me. Acha, Khogli ma'am we also. Thank you so much. Very good. Now the next thing we will do, let's take few breath. Breathe in and breathe out. One more thing we have to check. आप ब्रीदिंग ठीक से कर रहे हैं कि नहीं. कई बार प्राणायाम तो आप कर रहे हो लेकिन आप ब्रीदिंग ही ठीक नहीं कर रहे, तो प्राणायाम क्या करेगा बेचारा. फिर कहोगे 1 महीने बाद कुछ असर ही नहीं हो सकता है ना. तो आप यहाँ अपना हाथ, अच्छा टम्मी पे रख लीजिए. लेफ्ट हैंड. सांस लीजिए, टम्मी पे रखिए. टम्मी पे सभी लोग सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे धीरे धीरे. सांस लीजिए, सांस छोड़िए. एक बार और सांस लेंगे और धीरे से छोड़िए. अब आपने जब सांस लिया तो आपका पेट अंदर गया कि बाहर गया, बस ये बता दीजिए कोई एक जना. मैं आए? हाँ जी आप बताइए. जब मैंने सांस लिया तो पेट अंदर गया मेरा. धन्यवाद. अनुपमा जी, रॉन्ग ब्रीदिंग पैटर्न. दिस वाज सेम विद तनु मैम ऑल्सो. आप लोग प्लीज सुनिए मेरी बात. जस्ट एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्रैक्टिस करिए पहले कुछ 1-2 वीक के लिए, कि आप जब सांस ले पेट पे हाथ रख लीजिए, लेफ्ट हैंड. ठीक है. ब्रीद इन. आपका पेट 100% बाहर आना चाहिए. 100%, क्योंकि आपका डायफ्राम आपके टमी को पुश कर रहा है. साइंटिफिक, और ये तो है ही, यही है. और आपका अंदर जा रहा है, इट मीन्स यू आर नॉट ब्रीदिंग प्रॉपरली. सो ये हम कर सकते हैं चेक अपने आप से. ठीक है. और ये करना ही है. क्यों? क्योंकि आपकी ब्रीदिंग ठीक नहीं है तो आपकी इम्यूनिटी, आप कितनी भी दवाई ले लीजिए, कितना भी इम्यूनिटी बूस्टर ले लीजिए, कुछ नहीं होने वाला. आप ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं अपने आप को. ठीक है. और दिल्ली में तो वैसे ही कमी है, मैं आपको क्या बताऊं. मैं तो खुद अलवर में आ गई हूँ इसलिए. चलो लेट अस डू नेक्स्ट थिंग. लेट अस शेक आवर हैंड्स.
और कैसे शेक करेंगे, आपका जो आप किसी के पास तो डॉगी होगा ना, उसको जब पानी से नहलाते हैं कैट को कैसे करते हैं वो शेक 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 मुस्कुराते मुस्कुराते। अन्विका कितना अच्छा कर रही है देखो, शेक 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 शेक। वेरी नाइस अन्विका। हाँ देखिए ये शेकिंग क्यों करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। उनको देखिए वो क्यों करते हैं, आपने कुछ उनके ऊपर डाला तो वो क्या करते हैं, झाड़ देते हैं, भैया हटो। और हम क्या करते हैं, उसको लेके चलते रहते हैं, और एक दिन नहीं उसको लाइफ टाइम लेके चलेंगे हम, 10 साल 15 साल उसी आदमी से मिलेंगे। तो अभी शेकिंग रुका नहीं है भैया, फॉलो योर टीचर, दैट्स बैड टीचर्स। चलो करते हैं शेक 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 शेक, रुकना नहीं है, शेकिंग शेकिंग, हाथ को फैला लेंगे। तो हमें ना ये भैया अपने कंधों का ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योर शोल्डर्स, डोंट टेक दिस बैगेज टिल द एंड ऑफ द बेड, कि भाई बेड पे जाएंगे तब तक रखेंगे उसको, तो हम दुखी आप ही हो जाएंगे, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो भूल भी गया होगा, चैन की नींद सो रहा होगा सामने वाला, तो ठीक है। शेक 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 शेक, अच्छे से शेक करना है, इसके बाद बहुत अच्छा प्रोसेस है। ओके, दिस इज द लास्ट थिंग। ओके, डोंट वरी, खत्म कर देंगे आज, पूरे दिन नहीं करना हमें। ओके, नाउ क्लोज योर आईज एवरीबॉडी, प्लीज क्लोज योर आईज। सबसे जरूरी है आंखें बंद करना, आंखें बंद करिए, स्पेक्स को रख दीजिए साइड में थोड़ी देर के लिए। क्लोज योर आईज, वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस। आईज क्लोज, हथेली आकाश की तरफ खुली हुई, आईज क्लोज। बहुत लोग आकाश की तरफ अपने नीज पे रखिए, गर्दन सीधी, कमर सीधी। जो भी ऊर्जा आपके हाथों से निकल रही है, आई एम श्योर आप सभी लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे। ये सब प्राणा हमारे अंदर ही है। आप नीज पे हाथ को रखिए, आराम से नीज पे रख दीजिए, आकाश की तरफ खुला हुआ, हाथों को नीज पे रखेंगे। विनीता मैम हाथों को नीज पे रखिए। कीप ऑब्जर्विंग योर बॉडी, ऑब्जर्व योर ब्रेथ। Now observe your mind. Is it a little calmer? हमने जब शुरू किया था, अब देखिए एक काम अवस्था में पहुंच चुका है। अब जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए। Very short meditation we are doing. Now observe your emotions. आपके अंदर जो भी भावनाएं आ रही हैं उन्हें ऑब्जर्व करेंगे। किसी को हंसी आ रही होगी, किसी को रोना आ रहा होगा, किसी को गुस्सा आ रहा होगा, किसी को अच्छा लग रहा है। These all are emotions. Feel your emotions. सिर्फ ऑब्जर्व करना है हमें। You are love. You are peace. You are joy. ईश्वर की बनाई हुई श्रेष्ठतम कृति हैं आप। आप अपने आप में यूनिक हैं, जैसे भी हैं आप अपने आप को स्वीकार करिए। आंखें बंद रखते हुए ही सांस लेते रहेंगे। एक बार फिर से इमोशंस को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व योर इमोशंस। ऑब्जर्व योर थॉट्स, अपने विचारों को देखेंगे। ऑब्जर्व योर ब्रेथ। धीरे से अपने शरीर को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व योर ओन बॉडी। आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएंगे। टेक योर अटेंशन टू द सराउंडिंग्स। जो भी आवाजें आ रही हैं उन्हें महसूस करेंगे। जब भी आपको पूर्णता लगे, वेरी स्लोली यू मे ओपन योर आईज। अच्छा लग रहा है आपको? जब भी आपको पूर्णता लगे तब खोलेंगे। इस ध्यान के बाद देखिए आपका मन हो गया है शांत, तो लेट अस प्रे फॉर एवरीबॉडीज वेल बीइंग। हाथ जोड़ेंगे।
आज सबकी मंगल कामना मिलके करते हैं, सब लोग जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाएं, जिनको भी जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक हो जाए. लेट अस प्रे फॉर द होल वर्ल्ड. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. ओम ओम शांति 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 शांति. शांति. धीरे से अपनी आंखों पे हाथ रखेंगे और धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे. अच्छा, आप में से जो भी ऑन कर सकते हैं अपना माइक, प्लीज टेल मी हाउ आर यू फीलिंग. ओ सुनीता मैम, बहुत अच्छा. ठीक है. सो विद दिस एग्रीमेंट मुझे लगता है सभी को अच्छा लगा होगा. आई कैन सी इवन स्माइलिंग फेस, है ना, पता तो लग रहा है कि अच्छा है फिर. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विल टेक ए प्लेज, शपथ लेंगे आज अपने लिए. वी विल मेक योगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. कैन वी डू दैट एवरीबडी? हैंड्स अप करके हम योगा को अपने जीवन की दिनचर्या में शामिल करेंगे. आप 5 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, पर प्लीज करना शुरू करिए. आप करेंगे, आपके बच्चे भी करेंगे, आप सभी यंग हैं और इवन जो भी हैं बच्चे सबके पास ही हैं, स्कूल के बच्चे भी हैं, तो हम सब लोग योगा करेंगे. सो माय जॉब इज डन. आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स. Thank you so much everybody. Thank you again Anupama ji. Thank you again Pooja ji and Principal sir for giving me such awesome opportunity. I really loved this session. I would like to so much. Yeah, ma'am, I think you deserve a big round of applause from everyone sitting here in this room, and I'm sure parents who are listening to you outside must be giving you a big clap over there. It was absolutely thank you amazing. Pooja ji. Very Thank you so much. Thank you. आपको कभी भी कोई भी गाइडेंस लेनी है योगा से रिलेटेड, whenever you want any guidance, you can always call me. You have my number. Your parents can also call me to ask anything, or I will definitely reply. Okay? Thank you. Thank you. And I think हमारी नन्ही अनविका सबसे अच्छा बता पाएगी कि उसको कैसा लगा. Yes, Anvika, you can share. अनविका, आप बताओ आपको कैसा लगा? मैम की आज मैम ने आपको योगा सिखाया. मैम बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा. आपकी तो आवाज आप में तो योगी है अनविका. Yeah, thank you Sunita ma'am and Pooja ma'am. I would like to share that in our WhatsApp groups, the class groups, we are getting lots of emojis of cheering up and excellent. So your session was very fruitful and it was liked by all the parents who are listening to us. And thank you ma'am so much for such an enriching session and the way you have engaged all the teachers and children together for a yoga on, especially today on your International Yoga Day. Thank you so much. Thank you so much everybody. To have you with us. Thank you. Anu ma'am, please proceed with the presentation further. Yes. So now may I invite our assistant headmistress ma'am, Miss Pooja Chandelier, who has been ideating this event for a long time and who has been executing with us, guiding us through and through how to go about it, and it has come out beautifully today. Thank you ma'am for your guidance. I would like to hear from you ma'am, how did you find the show and what you have to see about the event? Thank you so much Anupama ma'am. I think I'm totally speechless right now. I do not have words to explain the calmness, the soothing, the aura that I could feel during this yoga session. My special thanks to Sunita Chaudhary ma'am. I think I really need to give you a big gratitude for being with us today. You have made us this International Yoga Day very special for everyone who is listening to you. My thanks to HM Primary School and HM Middle School also for joining us in today's celebration and actually making this yoga Yog a Mahotsav. That is what it has been for today.
Principal Sir could not join right now because, as you know, this is an International Yoga Day which has been done in all the sections, and he has conveyed his compliments and best wishes to everyone, every parent who is listening to us, every child who is there with us. And he has said that may you all stay blessed and take care of yourselves with your family. Dear parents, I would like to say that you have actually seen this week-long efforts in the video that we had created, but you have tasted that week-long activities with your children. And I would say that if this show would have been even a little success, that has only happened because of you and your efforts. So you all deserve a big round of applause for being with us, joining us today, and making this yoga event a success. I think I would also like to talk that this morning has been a little different from the other mornings that we have done. We have actually been facing every day. And with the beginning of such beautiful, amazing asanas by Devansh and then Anvika's poem, it was just like a little cherry on top of the cake. And the beautiful tips that has been shared by our yoga expert, Sunita Chaudhary, ma'am. I think that is just like we have got a feather, in our cap, and we can just flaunt it and say that, we had that yoga expert who could talk and tell us what are the do's and don'ts of yoga. Thank you again, Sunita ji, for sharing your valuable tips with us and inspiring every person who is listening to you. I am sure all the parents and our little alkanites, my colleagues sitting here, must have felt very refreshed, relaxed and revived. वो कहते हैं ना कि योग की, वो कहते हैं कि जितना जल्दी करेंगे आप योग, जितना जल्दी करेंगे आप योग, उतना ही दूर रहेगा आपसे रोग. So with this, I am sure we all, as you have said, we have taken a pledge and we will reconnect ourselves with the world and nature, and we will again take a pledge to include ourselves in yoga in our daily routine for its wholesome and salubrious effects on the mind, body and soul. Wishing you all a very happy International Yoga Day. आपको इस योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. Please stay blessed, take care of your families, and thank you everyone for joining us. Thank you, Manu. Thank you, Pooja ma'am, for your inspirational words. And rightly said that we have to take a pledge. And since we've taken a pledge, this long 1 week yoga section is not about a week, it's about your whole life. We have to carry it through our lives. We have to discover our inner self through yoga and make yoga a part of our routine. So now, acknowledging the good that you already have in your life is the foundation for all in abundance. This is one of the most important lessons that we all have learned during pandemic. As we come to the end of our program, I would like to express my gratitude to Principal Sir for always motivating us and guiding us in each event. Thank you, sir. To our distinguished guest, Ms. Sunita Chaudhary ma'am, who shared her expertise of yoga and well-being, which inspired all the parents and all of us. My gratitude to Pooja ma'am for guiding us through and through the event. My gratitude to HM presidents, Ms. Sumita Rajiv ma'am and Kavita ma'am for being present here and for taking out time from their busy schedule. Thank you ma'am for being a part of a celebration. And lastly, but not the least, our precious tiny tots whose energy and enthusiasm kept the spark of yoga alive, even on a virtual setup. But let us not forget the driving force behind them, our dear parents, who joined hands with us for this long week event to make it a huge success. Thank you all for joining us today. I wish you all a very blessed day. Happy International Yoga Day to you and to everyone present here. So once again, thank you everyone. Wow, thank you so much, Anupama ma'am. Thank you, dear parents. Thank you for being a part of this show, and thank you for everything that you have been including with us. And our little ones, Anvika, thank you so much, darling. You were the star stopper today, and I can see your thumbs up. Yeah, you are the one who actually gives us the energy to do so many things, huh? And like you, we have little starlings sitting in every house and listening to us. So wo sare babies ke liye a big thank you and a warm hug. Please take care of yourselves, and thank you once again for joining. Thank you. Thank you, ma'am. You can just close the live event now. So much, ma'am. Welcome, baby. So much.